slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. You should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, never got anyone's help, I had to do it all myself. लोग जो हम लोग अक्सर for granted I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams is a modestness. I'm not here to say the thing, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something non-logical. Not as topical, rub it in and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. लेकिन अगर आप I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love तो वही if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ और एकदम पेशेंस के साथ डिस्पाइट फेसिंग फेलियर्स अगर लगा हुआ है, then I think that one day he or she will definitely get. मैं तो कहूँ किस्मत, मेहनत, स्ट्रेटजी। परसेंटेज अगर देखें तो 100 में से कितनी क्या क्या परसेंटेज आती है। किस्मत की क्या परसेंटेज होगी, डेडिकेशन या मेहनत की परसेंटेज प्लस स्ट्रेटजी की कितनी परसेंटेज। मैं स्ट्रेटजी और मेहनत लगभग समान स्तर पे रखूँगा। मेरे ख्याल से अगर 45% मेहनत है तो 45% स्ट्रेटजी, बिकॉज अगर आप मेहनत कर रहे हैं बिना स्ट्रेटजी तो अल्टीमेटली आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इन दोनों का जो सामंजस्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 45% to 45% और 10% जो बच जाता है वो लगता है। अच्छा, आपने IIT उसके बाद आप इस सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, आपके फादर हेड क्लर्क जी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आपके पास होता है। तो आप जब तैयारी कर रहे थे 3 बार आप मिस कर गए, उसके बाद कभी सोचा आपने कि मतलब छोड़ देना चाहिए, वो तो पा नहीं रहा, वक्त भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, पर ये जानना चाहते हैं कि हौसला टूटा तो फिर बांधा माँ बाप का क्या होता है? सर ऐसे में अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत हो कि हौसला कभी नहीं टूटा, कईयों बार टूटा था, बार बार टूटा था। जब आप फेल करते हो, आप देखते हो कि आपका परिणाम नहीं है, आपके पेरेंट्स मायूस होते हैं, आपके फ्रेंड्स मायूस होते हैं। तो ऐसा कहना बहुत गलत हुआ कि हौसला से टूटा था, लेकिन मन में था कि एक ब्रेक लेके फिर से वापस आए। जब आप एक कैटापुल्ट जिसको बोलते हैं, गुलेल जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी अगर लॉन्च करना है आपको किसी पत्थर को, पीछे आना पड़ता है। मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं पीछे आ रहा हूँ तो इस वजह से पीछे नहीं आ रहा हूँ कि मैं पीछे हट चुका हूँ, मैं इस वजह से पीछे आ रहा हूँ कि मुझे अभी और आगे जाना है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आइए इसकी कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कोचिंग से पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको जो कोचिंग में पढ़ाते हैं यही जिनको बीट करना होता है वो आपसे क्लास में होता है। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बतौर टीचर नारायणा मिशन
तो बतौर टीचर आपका क्या इम्पैक्ट रहा और आपने क्या उसमें लीड किया बच्चों को? क्या उनसे आपने कुछ सीखा कि आप उनको सिखाती है? नहीं, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के बच्चे हमारे एक अलग जनरेशन से आते हैं, एक अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक अलग टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं। सो आज के बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, और मैं हर बार जब क्लास में जाता हूँ तो सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को एज ए टीचर लेके नहीं जाता, मैं हमेशा एज ए स्टूडेंट लेके जाता हूँ कि कोई भी हो, मेरे से कितना भी छोटा हो, ही और शी हैज़ द पोटेंशियल टू टीच मी समथिंग अबाउट। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पर मैं ट्रूली मूव कर गया बाय द वर्ड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैंने यूज्ड टू इंटरैक्ट विद देम, मुझे लगता था कि नहीं, इस बच्चे ने जो मुझे कहा, दैट इज समथिंग व्हिच आई ट्रूली मूव। आप कितने वक्त से पढ़ा रहे हैं नारायणा में 2 साल लगभग। मतलब आप जब IAS देकर आप नहीं कर पाए, आप कामयाब नहीं हो पाए, तभी आप नारायणा में थे। जी जी। तो जो एटमॉस्फेयर होता है जहाँ आप रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जवाब के साथ नहीं। जो नारायणा कोचिंग एक ऐसा माहौल है जिसमें आप रह रहे हैं जी, यहाँ का स्टाफ भी था, यहाँ के बैठकर बच्चे भी थे। तो कभी ये सोचा जाए फील होगा बच्चे क्या करेंगे, अब तुम्हारे प्रिंसिपल को कहते यार अपना तो बीट नहीं कर पा रहे हो, हमारे बच्चों को बीट कराओगे, ये ख्याल कभी आया या ऐसा माहौल कभी लगा कि ऐसा माहौल यहाँ हो सकता है? सर मुझे लगता है कि नारायणा में रह के मैंने तहरीक किया है और उसके बाद निकला है, तो कहीं ना कहीं नारायणा के इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हो सकता है मैं किसी और जगह होता, किसी और कोचिंग में होता, तो नेगेटिविटीज इतनी ज़्यादा होती कि मैं कुछ कर नहीं पाता। तो लोग इतने सपोर्टिव है यहाँ पर, राइट फ्रॉम माई रिपोर्टिंग मैनेजर अप टू द लेवल ऑफ नेशनल कैंडिडेट, सबको इतने सपोर्टिव है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। क्लासेस अगर जा रहे हैं, कुछ अगर डाउनफॉल हो रहा है तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल जो एक पॉजिटिव एटमोसफेयर मुझे मिल सकता था नारायणा में, पूरा मिला, और मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अरे ये कहा जाता है कि जब IAS का एग्जाम तैयारी कर रहे होते हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक गलत सब्जेक्ट चुन लेंगे फिर आप बीट नहीं कर पाते, बड़ा सा इंट्रेंस वहाँ आपने खड़ा। तो सब्जेक्ट चुनने के लिए क्या आप टिप्स हैं जो आने वाले बच्चे बनने वाले फॉर्म उनको क्या देंगे, उनको सब्जेक्ट चुनने के लिए क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिससे आप प्यार करें, क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ आपको 3 साल 4 साल हो सकता है, 4 5 6 साल गुजारना है। अगर आप इस वजह से सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो डाउन द लाइन 2-3 साल में मुझे लगेगा कि, मुझे लगता है ऐसा है कि शायद वो इंटीमेसी आप सब्जेक्ट के साथ मेंटेन ना कर पाओ, कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो जाए। मेरे लिए मैथमेटिक्स बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है, मैं इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी झोंका हुआ हूँ, तो मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार था फ्रैंकली। सो जब भी मैं पढ़ता था मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि इट्स लाइक इट्स अ माई पास्ट टाइम। सो सब्जेक्ट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चूज एज पर योर इंटरेस्ट। जब आपका इंटरव्यू हुआ तो उसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जहाँ आप फंसे और कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए बड़ा आसान था? क्वेश्चंस वैसे तो बहुत सारे थे जहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। मुझे पूछा गया था कि एक मैम ने पूछा था कि अरण्य कुछ वर्ड था, सम लिटरेचर सॉर्ट ऑफ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो क्या था, मैंने मुझे पता नहीं। और अगर आसान सवाल की बात करें तो टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, मैथमेटिक्स के सवाल हैं, और तो वो चूँकि मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरा नेचुरल इंटरेस्ट भी है, तो सभी लोग जी। अच्छा, अब आप फाइनली जो रन IAS 2 साल के बाद आपकी पहली कोचिंग बतौर नहीं होगी, स्टेट कैडर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके दिमाग में आपको 89 पोजीशन तो कैडर की बहुत दिक्कत आपको होनी चाहिए जो आपके आगे। तो आप IAS चुनेंगे या कुछ और करेंगे, IFS में जाएंगे, दूसरी बात कौन सा कैडर आप चाहते हैं कि आपको मिले? एक्चुअली होते हैं कि जो सर्विस प्रेफरेंसेस और जो कार्डर प्रेफरेंसेस है वो इंटरव्यू के पहले ही फिल कराना होता है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अगर IAS की जगह कुछ और चूज़ करना तो वो मुझे नहीं मिला, मुझे IAS ही मिलेगा। और कैडर का सब थोड़ा सा ट्रिकी डाइसी सिचुएशन है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैडर एजुकेशन पॉलिसी 2017 में जो अपडेट हुई थी उसमें थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा कार्डर आपको एग्जैक्टली वो क्लियर है। मतलब आपको ऐसा मिलता है कि इसके लिए बहुत नेगेटिव अगर लिखना चाहते हैं। एक दो चीज़ होती है। पहली चीज़ आप IAS बनना क्यों चाहते थे? लोग कहते हैं कि उनको ताकत होती है, शोहरत होती है, कुछ सर्विस करना चाहते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ में फुलफिलमेंट खोजता हूँ जहाँ पर मैं दूसरों के काम आ सकूँ। अगर मेरी वजह से कोई किसी आदमी का दुख कम हो रहा है, खुश हो रहा है, उसकी ज़िंदगी आसान हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ को एक फुलफिलिंग वे में देख पा रहा हूँ। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड मी। ऑल थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा नेशन के लिए सोचा। एंड दैट इज़ समथिंग विच केप्ट मी मूविंग फॉरवर्ड। अगर मैं खुद के लिए सोच रहा होता तो शायद इतने दिन यहाँ पर नहीं टिक पाता, इस फील्ड में नहीं रह पाता। लेकिन सर स्टील फ्रेम बनाया था, थोड़ा सा मैं अलग हट के पूछ रहा हूँ। अब स्टील फ्रेम बनानी बड़ा बहुत आरोप लगने लगे कभी होता चुप जाते हैं। तो आप जब यू एल एन डी सर्विस तो सिन्हा जी क्या सोचते हैं कि उनको बतौर IAS कैसे मतलब कैसा चाहते हैं? सर IAS का जो मेन रोल है वो ये है कि जो परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसी मेकर हैं उनके डिसीजन उनके प्रोग्राम को इफेक्टिवली रन करें। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग किसी वजह से गलत ट्रैक पे जाते हैं, पॉसिबली कभी कुछ चाहते हैं वैसा कुछ जी नहीं, मैं चाहूँगा कि मुझे एज एन ऑनेस्ट ऑफिसर जाना। बहुत बढ़िया। तो सिन्हा जी थे जो कि IAS बीट कर चुके हैं और 50वीं रैंक आई UPSC में। वो चाहते हैं कि जब उनकी सर्विस एंड करे तो उनको एज ऑनेस्ट ऑफिसर याद रखा जाए और साथ ही वो जब तक सर्विस पे रहे लोगों की खिदमत करते रहे, लोगों की दिक्कतें सॉल्व करते रहे, यानी कि समाज के काम है। एक बार फिर बहुत मुबारक सिन्हा जी को और उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर और काबिल IAS करके दिखाएंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ एक नए इशू के साथ एक बार फिर आपका हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सौरभ सिन्हा, जिन्होंने बेहद ही साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके UPSC के एग्जाम में 49वीं रैंक हासिल की है। सौरभ जी झारखंड के दुमका के रहने वाले हैं। सौरभ जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अपने UPSC की जो यात्रा रही है उसके बारे में बताओ। ये UPSC में मेरा चौथा अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने 2 बार और इंटरव्यू तक पहुँचा बट फाइनल लिस्ट में मेरा एग्जाम नहीं हुआ। एंड भगवान की कृपा से इस बार 4th अटेम्प्ट में 49 रैंक है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और अभी मैं नारायणा में पढ़ा रहा हूँ। आप नारायण का अपनी कोचिंग कर मैंने अपनी कोचिंग हासिल की, IC कोचिंग को मैंने कहीं से नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की, कुछ रेफरेंस मटेरियल्स कुछ टिप्स वगैरह मैंने ज़रूर ज्वाइन किया था। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैंने यहाँ किया था कोचिंग, बट जो कोर स्टडी था मेंस का या प्रीलिम्स का दैट वाज माय ओन सेल्फ स्टडी। और आपने स्वयं अपने से स्टडी करके और एग्जाम करते हैं। जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हेड क्लर्क के रूप में भी कार्यरत हैं और मम्मी जो है वो हाई हाउस में। दिक्कतें तो हर तरीके की आती हैं, हर तरीके की पढ़ाई से लेके फैमिली से लेके फाइनेंशियल से लेके मेंटल से लेके, बट आई वॉज वेरी मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे हर तरीके की जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई नो व्हाट आई डू। सामाजिक दिक्कत ये होती है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, जैसे मैं IIT खड़गपुर से, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं कि आप जब कॉलेज से निकलो तो आप प्रोडक्टिवली नेशन के बिल्डिंग में कुछ हेल्प करें। सो जब मैं कॉलेज से निकला तो 2 से 3 साल मैंने सेल्फ स्टडी में लगाया, मैं विदाउट जॉब था। सो एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना वन ऑफ द सोसाइटल डिफिकल्टीज आई फेस। और ये जो आपने लोगों की उम्मीदों की बात की थी, लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, अन्य जो छात्र हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे जो उम्मीद कर लेते हैं, उनसे कैसे निपटना? तो किसी से नहीं है, आप बस अपनी मेहनत करते जाइए, आप अपने मन में विश्वास रखिए कि जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और एक समय के बाद जब आप एक अच्छे नागरिक के रूप में उठेंगे तो जब आप लोगों को पता चलता है उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है। तो इस पर बहुत ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, आपसे मत कर दिया या आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं जॉब में नहीं था, मेरे फादर बहुत वेल अर्निंग नहीं है, तो चीज़ों को मैनेज करना, पढ़ाई को स्पॉन्सर करना इसमें बहुत ही करें और लोग की तरह उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, तो सब अच्छा है। लोग ऐसे अलग तरीके से हाथ मांगे बहुत बार ऐसा लगा
लेकिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया उसको कंटिन्यू करने के लिए। मेरे अपने सेल्फ मोटिवेशन ने मुझे प्रेरित किया। तो वही है कि अगर सपोर्ट आपके पास अच्छा है तो आप कितने भी गिरोगे आप फिर से उठोगे। तो साधारण परिवार से ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, वो इसकी तरह से यहाँ तक पहुँचते। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेहनत हो सकता है कि 10 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, लेकिन आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के अगर पढ़ा जाए विथ फर्म मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन, तो आई थिंक कि कोई भी आदमी कर सकता है। आपके पिताजी क्लर्क हैं आपने बताया, तो उनके जो मूल्य थे वो कैसे आपको प्रभावित किए? मेरे फादर थ्रू आउट द सर्विस इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। अगर आप मेरे घर में दुमका डिस्ट्रिक्ट में जाओ और वहाँ की जो कोर्ट कंपाउंड जहाँ पर मेरे फादर बैठते हैं बार एसोसिएशन, आप किसी से भी पूछो, सो ही इज नोन फॉर ए गुड ट्रैक रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि आई हैव टू एमिनेट मेरे फादर को। तनाव से बचने के लिए तनाव से बचने के लिए जो आप हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, स्केचिंग हॉबी को परस्यू करना चाहिए। आप 1 घंटा ही करना, रनिंग के लिए चाहिए, स्विमिंग के लिए कुछ भी करिए, लेकिन वो 1 घंटा आपका अपना होना चाहिए जहाँ पर आप स्ट्रेस नहीं हो, आप इस चीज़ के बारे में सोच नहीं। और अगर वो 1 घंटा आपने अपने लिए दिया तो वो आप बाकी तेज करें। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी रैंकिंग टीम ट्रीटमेंट, और आगे चलकर मुझे लगता है कि मैं अपना देश के लिए प्रॉब्लम्स सोसाइटी उसको मैं अपनी तरफ पहले भी रीज़न तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा बहुत साधारण भूमि से है तो उसको अब और वो अगर मोटिवेटेड है, IAS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करने का मौका देता है और अच्छा करने का अवसर देता है। तो अगर बहुत लोग मोटिवेटेड वो जब यूपीएससी के एग्जाम में 49वीं रैंक हासिल की, और उन्होंने बताया कि इस दौरान तैयारी के दौरान इनको बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी अपनी सोच और इनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया और आज इन्होंने यूपीएससी के परीक्षा में 49वीं रैंक हासिल की। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ। Jadi